फजल और कदूस नाम में आप सबको मेरी तरफ से और इस्लामाबाद की कलीसिया की तरफ से पास्टर रफीक भट्टी की कलीसिया और उनकी तरफ से, इसी तरह पिंडी की कलीसियाओं ने भाई जमील की कलीसिया और भाई जमील की तरफ से भाई विकास रशीद जो डियाला जेल में उन्होंने कलीसिया वर्क शुरू किया है, उनकी तरफ से और उनकी कलीसिया की तरफ से, और भाई फरमान जो मोगा में है उनकी और उनकी कलीसिया की तरफ से आप सबको आज सुख का सलाम पहुंचे। हालेलुया 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 हालेलुया। आए हम कलामे खुदा की तरफ बढ़ते हैं। कलामे खुदा में से हम अपनी नसीहत के लिए और तरबियत के लिए तलाब करेंगे, और मैं चाहूँगा कि भाई ज़हन जो है वो हमारे लिए तलाब करें। यशाया 53 बाब, यशाया 53 बाब और उसकी पहली आयत से लेकर आखिरी आयत तक कलामे खुदा की तलाब करें। यशाया 53 बाब और उसकी पहली आयत से आखिरी आयत तक। और खुदा के जिंदा कलाम में यूं मरकूम है, हमारे पैगाम पर कौन ईमान लाया और खुदावत का बाजू किस पर जाहिर हुआ। पर वो उसके आगे कोपल की तरह और खुश्क ज़मीन से जड़ की मानिंद फूट निकला है। ना उसकी कोई शक्ल सूरत है ना खूबसूरती, और जब हम उस पर निगाह करें तो कुछ हुस्न जमाल नहीं कि हम उसके मुश्ताक हों। वो आदमियों में हकीरों मरदूद मर्दे गमनाक और रंज का आशना था। लोग उससे गोया रूह पोछते, उसकी तहकीर की गई और हमने उसकी कुछ कदर ना जानी। तो भी उसने हमारी मुशक्क़तें उठा ली और हमारे गमों को बर्दाश्त किया। पर हमने उसे खुदा का मारा कूटा और सताया हुआ समझा। हालांकि वो हमारी खताओं के सबब से घायल किया गया और हमारी बदकारी के बाइस कुचला गया। हमारी ही सलामती के लिए उस पर सियासत हुई ताकि उसके मार खाने से हम सब भेड़ों की मानिंद भटक गए। हम में से हर एक अपनी राह को फिरा, पर खुदावन ने हम सबको हमारी सबकी बदकरदारी उस पर ला दी। वो सताया गया तो भी उसने बर्दाश्त की और मुंह ना खोला। जिस तरह बर्रा जैसे ज़िबा करने को ले जाते हैं और जिस तरह भेड़ अपने बाल कुतरने वालों के सामने बेजुबान है, उसी तरह वो खामोश रहा। वो जुल्म करके और फतवा लगाकर उसे ले गए, पर उसके ज़माना के लोगों में से किसने ख्याल किया कि वो जिंदों की ज़मीन से काट डाला गया। मेरे लोगों की खताओं के सबब से उस पर मार पड़ी।
اس کی قبر بھی شریروں کے درمیان ٹھہرائی گئی اور وہ اپنی موت میں دولت مندوں کے ساتھ ہوا، حالانکہ اس نے کسی طرح کا ظلم نہ کیا اور اس کے منہ میں ہرگز چھل نہ تھا، لیکن خداوند کو پسند آیا کہ اسے کچلے۔ اس نے اسے غمگین کیا۔ جب اس کی جان گناہ کی قربانی کے لیے گزرانی جائے گی تو وہ اپنی نسل کو دیکھے گا، اس کی عمر دراز ہوگی اور خداوند کی مرضی اس کے ہاتھ کے وسیلہ سے پوری ہوگی۔ اپنی جان ہی کا دکھ اٹھا کر وہ اسے دیکھے گا اور سیر ہوگا۔ اپنے ہی عرفان سے میرا صادق خادم بہتوں کو راست باز ٹھہرائے گا، کیونکہ وہ ان کی بدکرداری خود اٹھا لے گا۔ اس لیے میں اسے بزرگوں کے ساتھ حصہ دوں گا اور وہ لوٹ کا مال زور آوروں کے ساتھ بانٹ لے گا، کیونکہ اس نے اپنی جان موت کے لیے انڈیل دی اور وہ خطا کاروں کے ساتھ شمار کیا گیا، تو بھی اس نے بہتوں کے گناہ اٹھا لیے اور خطا کاروں کی شفاعت کی۔ قرآن کے کلام کا پڑھا سنا جانا ہم سب کے لیے برکت کا باعث ہو۔ قرآن کا شکر ہو۔ آئے ہم دعا مانگے۔ اسی یسوع میں ہمارے آسمانی پتا تیرا شکر کرتے ہیں آج کے اس خوبصورت وقت کے لیے، آج کے اس دن کے لیے، اور تمام ساری اس نگہبانی اور حفاظت کے لیے جو خدا تمہیں ایک دوسرے شہر سے ہمارے اس گھر میں، اس جگہ پر، اس کلیسیا کے اندر تو نے ہمیں صحیح سلامت پہنچایا۔ اس بات کے لیے ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں، اور جب تیرے حضور میں پہنچے ہیں خدا تو نے اس بات کے لیے کھڑا کیا ہے کہ تو مجھ میں سے ہو کر بولے۔ اے زندہ خدا، جتنی دیر میں یہاں کھڑا رہوں میں نہیں بلکہ تو مجھ میں سے ہو کر بولے، میں گھٹوں اور تو بڑھے خدا، اور تیرے لوگ تیرے کلام سے مستفید ہو، انہیں سمجھنے والا ذہن، سننے والے کان، قبول کرنے والا دل اور عمل کرنے والی روح بخش۔ میرے منہ کو چھو اور اپنے کلام سے بات دیجیے مسیح یسوع کے نام سے آمین۔ آپ تو بیٹھ سکتے ہیں۔ ہاللیلویا، 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 ہاللیلویا۔ آپ سب جانتے ہیں کہ آج مسیحی لوگ جو ہیں وہ ایک بڑا تہوار منا رہے ہیں، اور وہ تہوار جو منا رہے ہیں وہ کیا ہے؟ آپ سب جانتے ہیں وہ پام سنڈے منا رہے ہیں۔ کیا منا رہے ہیں؟ پام سنڈے، کھجوروں کا تہوار، کھجوروں کا۔ اور اس سنڈے ہوا کیا تھا؟ کتنے لوگوں کو یاد ہے کہ آپ کا اور میرا خداوند جو تھا وہ یروشلم کے اندر آیا، اور جب وہ یروشلم میں آیا تو اس بار اس کا یروشلم میں آنا پہلے جتنی بار وہ یروشلم میں آیا اس سے کچھ مختلف تھا، اس سے کچھ، کیونکہ اس بار جب آپ کا اور میرا خداوند یروشلم کے اندر آیا تو اس کا ایک شاہانہ طور پر استقبال کیا گیا، اسے ویلکم کیا گیا۔ یروشلم کے اندر جب آپ کا اور میرا خداوند آیا تو یروشلم کے لوگوں نے آپ کے اور میرے خداوند کے استقبال کے لیے، اس کو خوش آمدید کہنے کے لیے انہوں نے کیا کیا؟ راستہ میں کپڑے بچھائے، کھجور کی ڈالیوں کے ساتھ ان کو لہرا کر آپ کے اور میرے خداوند کو ویلکم کہا۔ اور جب وہ آپ کے اور میرے خداوند کو ویلکم کہہ رہے تھے تو وہاں پر ایک شور تھا، وہاں پر ایک شور تھا، وہاں پر کیا تھا؟ شور تھا۔ کس بات کا شور تھا؟ کس بات کا شور تھا؟ وہ کہہ رہے تھے ہوشنا ہوشنا مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے۔ وہ کہہ رہے تھے مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے۔ وہ آپ کے اور میرے خداوند کو مبارک کہہ رہے ہیں، وہ آپ کے اور میرے خداوند کو ویلکم کہہ رہے ہیں۔ اور وہاں پر ایک بیداری تھی۔ حضرت ابراہیم کہتے ہیں جب کلام آتا ہے تو بیداری آتی ہے۔ اس وقت یروشلم کے اندر آپ کا میرا خدا جو کلام ہے
है। वो आया तो वहां पर एक बेदारी थी। वहां के जो लोग थे, वहां के जो मजहबी लोग थे, उन्होंने क्या चाहा कि आज ये जो बेदारी आई है, ये बेदारी जाती रहे, ये बेदारी खत्म हो जाए। लोग जो शोर मचा रहे हैं, शोर कौन मचाते हैं, जिंदा या मुर्दा? जिंदा। मुर्दे भी शोर मचाते हैं। जिंदा क्यों शोर मचा रहे थे? क्योंकि उनके अंदर जिंदगी आ चुकी थी, उनके अंदर कलाम आ चुका था, उनके अंदर जिंदगी का मंबा आ चुका था, वहां पर यीशु मसीह आ चुका था। और जहाँ खुदा यीशु मसीह होता वहां पर जिंदगी, वो जिंदगी की रोटी है, वो जिंदगी का पानी है, वो जिंदगी की राह है, वो जिंदगी का दरख्त। इसलिए हमें जरूरत है कि अपने दरमियान अपने खुदा को वेलकम करें, क्योंकि जब वो यहाँ पर होगा तो फिर यहाँ पर जिंदगी होगी, फिर यहाँ पर तो फिर चुप नहीं रवांगे, फिर जिंदा लोग शोर मचाएंगे। कौन सा शोर? हालेलुया वाला शोर, आमीन वाला शोर। क्योंकि हम कलाम अक़दस के अंदर देखते हैं, आपका और मेरा खुदा आसमान पर जब तक पर बैठा है तो वहां पर सराफीन क्या कह रहे हैं? कदूस 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 कह रहे हैं। काशवा की किताब में जब हम देखते हैं कि आपका और मेरा खुदा जो है वो तख्त पर बैठा है, तो वहां पर भी हम देखते हैं कि वहां पर जो बुजुर्ग है, वहां पर जो फरिश्ते हैं, वो क्या कह रहे हैं? कदूस 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 कह रहे हैं। वहां पर शोर है, लेकिन एक दिन ये आसमान पर शोर खत्म हो गया। 28 फरवरी 1963 को जब आप पर मेरा खुदा जमीन पर आ गया, वो सनसेट के पहाड़ पर आ गया। वो कहां पर आ गया? सनसेट के पहाड़ पर आ गया। तो फिर शोर आसमान पर नहीं, बल्कि फिर शोर कहां पर है? सनसेट के पहाड़ पर है। तो एक दिन आपका और मेरा खुदा जो आज से 2000 साल पहले वो यरूशलेम में आ गया। वो खुदा जो आसमान पर था वो यरूशलेम में आ गया, तो शोर यरूशलेम के अंदर था, वहां पर शोर था, क्योंकि जहां पर यीशु होता है वहां पर शोर होता है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। कि ਅਸੀਂ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਬੋਲਣ ਤੁਸੀਂ नहीं रहे। कल सुबह की रात को एक लंबा सफर भी किया है और अब भी आपके दरमियान है, तो मैं चाहता हूँ कि जितनी देर आप कलाम सुनना चाहते हैं तो आमीन और हालेलुया, क्योंकि ये आमीन और हालेलुया क्या है? ये बीज को पानी देना, बीज कलाम है। अगर आप चाहते हैं कि ये कलाम आपकी जिंदगियों में बढ़े तो फिर आमीन और हालेलुया का मुझे पता चले कि आप कलाम सुन रहे हैं, आप यहाँ पर मौजूद है, आप कहीं और नहीं गए हुए। आपकी सोचे और ख्याल जो है वो यहाँ पर ही है। तो हमने ब्रदर ब्रहनम का पैगाम जो आपके और मेरे लिए भाई हैसल ने इस पैगाम को प्रिंट करवाया, इस पैगाम को जिसका उन्वान है, मजमून है, खुदा का शनाख्तशुदा, खुदा का शनाख्तशुदा। हम उसमें से देख रहे थे कि खुदा का शनाख्तशुदा जो शाहकार है वो क्या है, वो क्या है। और हमने इसकी डेट के मुताबिक भी से देखा कि ये जो शनाख्तशुदा शाहकार है ये हमें क्या कर रहा है? बिच्छू वाली बुर्ज में से निकाल कर एक और बुर्ज में ले आ रहा है। 20 अक्टूबर से 20 नवंबर तक स्कॉर्पियो में से निकाल कर कहां पर लेकर आ रहा है? सजिटेरियस में और कैप्रिकॉर्न में लेकर आ रहा है। कहां पर लेकर आ रहा है? कैप्रिकॉर्न में, जिसका निशान क्या है? तीर कमान वाला आदमी फातेह, जो बिच्छू को मारकर उस पर फतह हासिल करके हमें एक और बुर्ज के अंदर लेकर आ रहा है। तो ये पैगाम भी ब्रदर ब्रहनम ने फुल गॉस्पेल के लोगों को दिया, बिजनेसमैन लोगों को दिया, वो जो अपने बिजनेस के सबब से
कहां पर? बिच्छू वाले बुर्ज में थे, डंग मारने वाले बुर्ज में थे, लेकिन खुदा ने उनकी फितरत को चेंज कर दिया। डंग मारने वाली फितरत को खुदा कर दिया, उन्हें एक ऐसी फितरत दे दी जो फातिह की। इसीलिए तो पौलुस कहता है, ऐ मौत तेरा डंग वो बिच्छू वाला डंग खत्म कर दिया। ऐ मौत तेरा डंग कहां रहा? मौत जो है वो फतह का रुकना हो गई। एक तीर कमान वाले शख्स ने आपके और मेरे खुदा ने उसे शिकस्त दे दी है, जो आपका और मेरा सर है, और हम क्या है? उसका बदन है। हालेलुया। वो हमें हमारे भी फितरत को चेंज करता है। अब हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है कि हमारा बुर्ज तो बिच्छू वाला है। हम तो 20 अक्टूबर से 20 नवंबर के अंदर आए हैं, लेकिन एक है जो इस फितरत को चेंज करने की जरूरत है, वो आपका और मेरा खुदा। कलाम खुदा के अंदर आपने पढ़ा होगा, कलाम खुदा में लिखा है, अगर तू ईमान से कहेगा, क्या कहेगा? कि ये शतूत का दरख्त जो है ये कहां पर लग जाए? समुद्र में, पानी में। हालांकि जो शतूत है वो कहां पर होता है? जमीन पर, पानी में नहीं होता। लेकिन आपके और मेरे खुदा जो है वो फितरत को चेंज करने की कादिर मुतलक खुदा है, ऐसा करने की कुदरत रखता जरूर है कि हम अपने खुदा पर ईमान लाएं। हालेलुया। तो आज जैसे हमने पिछली बार हमने कुछ कोर्स देखे, तो आज हम 10वें कोर्स से शुरू करते हैं। खुदा का शनाख्तशुदा शाहकार, ये 10वां कोर्स जो है, जब हम इसमें पढ़ते हैं तो यहाँ पर आपके और मेरे जमाना के नबी ने कहा है कि जबकि मैं यहाँ बैठा हुआ था और लोगों की तरफ देख रहा था, तो मैं सोच रहा था। आप जानते हैं बहुत जल्दी हम इस शरफ से हाथ धोने वाले हैं। वर्ल्ड काउंसिल ऑफ चर्चेस जल्दी सबको निकल जाएगी। मैं तसव्वुर कर रहा हूँ आज रात मेरे सामीन पेंटिकॉस्टल और बैप्टिस्ट चर्च ऑफ गॉड और उन लोगों पर मुश्तमिल है जो उस वर्ल्ड काउंसिल ऑफ चर्चेस से बाहर है, और वो सिर्फ इसी के साथ काम जारी रखे हुए हैं। और यही बात बाइबल कहती है कि वो ये करेंगे, और हमें इसके बारे में खबरदार किया गया था। बस आए, इससे दूर रहे। और बस जैसे आज रात उस गीत में इस बारे में बताया गया कि खुदावंद की आमद नजदीक है, जितना हम सोचते हैं ये उससे ज्यादा नजदीक है। ये उससे यहाँ पर आपको और मुझे खुदावंद का बंदा विलियम मैरियन ब्रानम, जो आपके और मेरे जमाना के नबी है, वो हमें इस आवाज से गा कर रहे हैं, WCC के बारे में हमें बता रहे हैं। लोग आज इसके बारे में ये नहीं जानते कि ये क्या है, उन्हें सिर्फ यही पता है कि ये तंजीमों का इत्तेहाद है, ये तंजीमों का इत्तेहाद है। लेकिन आपके और मेरे जमाना के नबी ने कहा कि ये वर्ल्ड चर्च काउंसिल जो है ये क्या है? ये तंजीमें आज जो इससे बाहर है, ये आजादी के आजादाना तौर पर खिदमत कर रही है, लेकिन जब ये इसका हिस्सा बन जाएंगी तो फिर क्या होगा? ये मुकाशफा 13 बाब वाला वो बुत होगा जिसे वो हैवान जो है अपनी मर्जी से चलाएगा। वो हैवान जो है जो कुछ कहेगा दूसरा हैवान उसके लिए करेगा, और दूसरा हैवान जो है इस बुत को क्या करेगा? पहले हैवान के लिए, उसके इस्तेमाल के लिए, उसके काम के लिए बुरे कार लाएगा ताकि ये उसके लिए काम करे, ये पहले हैवान के लिए काम करे। और ब्रदर ब्रांडन ने हमें पहले ही से बता दिया है कि आज ये तंजीमें जो है, आज ये मिशनें जो है, आज ये WCC से बाहर है। ये पैगाम जो 5 दिसंबर 1964 को दिया गया, ये 5 दिसंबर 1964 को जो पैगाम दिया गया,
اس پیغام میں آپ کے اور میرے زمانہ کے نبی نے ہمیں یہ بات بتا دی ہوئی ہے کہ آنے والے دنوں میں کیا ہونے والا ہے. لوگ جو ہے، تنظیمیں جو ہے وہ اتحاد کریں گی، اور جب اتحاد کریں گی تو کیا ہوگا؟ جس جگہ میں جس میں انہوں نے مرج ہونا ہے اس کا نام کیا ہے؟ ورلڈ چرچ کونسل. پوری دنیا کے اندر جتنی تنظیمیں ہیں، جتنی کلیسیائیں ہیں، وہ اس کے ساتھ ایک ہو جائیں گی، اور یہ جو WCC ہے یہ ان کو نکل جائے گی. یہ ورلڈ چرچ کونسل جو ہے یہ ان کو نکل جائے گی. لیکن خدا کے بندہ نے ہمیں بتایا ہے دلہن جو ہے وہ اس کا حصہ نہیں بنے گی. دلہن جو ہے وہ اس کا حصہ نہیں بنے گی، وہ ان کے ساتھ نہیں ملے گی، کیونکہ آپ کے اور میرے زمانہ کے نبی نے اپنے اس پیغام کے اندر جو خدا کے نبی کا پیغام ہے، متحد ہونے کا وقت اور نشان، خدا کے بندہ نے بڑے خوبصورت طریقہ سے ہمیں بتایا ہے بائبل کے اندر. جس بات کو یرمیہ نے کوٹ کیا ہے کہ وہ کیا کرے، اپنے وقت کو پہچانے، کیونکہ یرمیہ نے بتایا کہ بابیل جو ہے، جو پرندے ہیں وہ اپنے وقت کو پہچانتے ہیں. اگر وہ سرد علاقہ میں رہتے ہیں تو جب برف باری ہونے والی ہوتی ہے تو وہ کیا کرتے ہیں؟ پرندے وہاں سے وہ وہاں سے کوچ کر جاتے ہیں. وہ اس برفانی جگہ کو چھوڑ دیتے ہیں. کیوں چھوڑ دیتے ہیں؟ کیونکہ انہیں پتا ہے کہ اب اگر ہم یہاں پر رہیں گے تو پھر ہم مر جائیں گے. پھر ہم کیوں مر جائیں گے؟ کیونکہ یہ برف جو ہے جب ہمارے اوپر جم جائے گی ہم پار نہیں مار سکیں گے، ہم اڑ نہیں سکیں گے، اور جب ہم اس حالت میں رہیں گے تو پھر مر جائیں گے. آج بھی ایسا ہی ہو رہا ہے. آپ کے اور میرے زمانہ کے نبی نے متحد ہونے کا وقت اور نشان میں بتایا ہے کہ اب لوگ متحد ہو رہے ہیں، یونائٹ ہو رہے ہیں، ایک ہو رہے ہیں، تنظیمیں ایک ہو رہی ہیں، اور انہیں WCC کیا کر رہا ہے؟ ان کے پروں کو باندھ رہا ہے، ان کو عقیدوں کے ساتھ باندھ رہا ہے، ان کو رسموں اور روایتوں کے ساتھ باندھ رہا ہے. وہ کیا کرے کہیں ایسا نہ ہو کہ اڑنے کے وقت وہ اڑ کر دلہا کے ساتھ ایک ہو جائے. وہ انہیں باندھ رہا ہے، وہ انہیں اس موت کے اندر رکھنا چاہ رہا ہے، کیونکہ یسوع زندگی دیتا ہے. یسوع لیکن ایک دوسری شخصیت ہے جو اس کے خلاف کام کر رہی ہے، جو ابلیس ہے. وہ کیا کرتا ہے؟ وہ موت دیتا ہے. وہ کیا کر رہا ہے؟ لوگوں کو اپنی طرف کھینچ رہا ہے، ان کو چرچ دکھا رہا ہے، بڑی بڑی بلڈنگ دکھا رہا ہے، یہ تنظیموں کا ایک ہونا دکھا رہا ہے، اور سب تنظیمیں اس WCC میں کیا ہو رہی ہیں؟ جا رہی ہے. اور WCC کیا کر رہا ہے؟ اپنی تعلیمات سے ان کے پروں کو باندھ رہا ہے. اسی طرح ایسا ہی ہو رہا ہے. آج خدا کے لوگ جو ہے جو اس پیغام کی طرف نہیں آ رہے، جو اپنے ان چرچوں کی طرف جن کے اندر وہ رہنا چاہ رہے ہیں، جیسے نبی نے بتایا کہ پرندے جو ہے وہ اپنے وقت کو جانتے ہیں، پہچانتے ہیں کہ جب وہاں پر موت آنے والی ہوتی ہے وہ اس جگہ کا چھوڑ کر زندگی والی جگہ میں چلے جاتے ہیں. اور میرے بھائیوں اب اس دنیا کے اوپر بڑی بڑی مصیبتیں آنے والی ہیں، بڑی بڑی پریشانیاں آنے والی ہیں، لیکن اگر بچنا ہے تو پھر ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ وقت کو پہچاننا ہوگا، نشان کو دیکھنا ہوگا. نشان کیا ہے؟ نشان اب جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ ریپچر والا نظر آ رہا ہے. ہمیں کیا کرنا ہے؟ اب ہوا میں ہو کر اپنے قرآن کے ساتھ دیکھو. اگر ہم اس جگہ کو نہیں چھوڑیں گے، جیسے میں بتا رہا تھا کہ نبی نے یہ بات کہی ہے کہ پرندے بھی اپنے وقت کو پہچانتے ہیں کہ اب یہاں پر اگر رہیں گے تو مر جائیں گے، لیکن اگر آپ انسان ہیں تو آپ کے پاس تو پرندوں سے کہیں زیادہ تر. کہ آپ کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی
कि अब इस दुनिया के ऊपर मौत जो है वो तारी होने वाली है, मौत दुनिया को अपने शिकंजा में लेने वाली है, लेकिन एक है जो हमें इस मौत में से निकालने की कुदरत रखता है, वो आपका और मेरा खुदा यीशु मसीह है। वो जो इस जमाना के अंदर इब्ने आदम की खिदमत ब्रदर ब्राह्मण के अंदर नजर आती है, ये पैगाम जो है ये हमारे लिए हमारे उड़ने का सामान है। ये हमें WCC का हिस्सा नहीं बनने देंगे। ये पैगाम को अगर हम अपने दिल में जगह देंगे तो हम तंजीमों में नहीं रहेंगे, फिर हमारे पर बंधे नहीं होंगे, फिर हम हवा में उठकर अपने खुदा का इस्तकबाल करने वाले हैं। हालेलुया। मेरे भाइयों, यहाँ पर नबी ने बताया कि अब खुदा यीशु मसीह की आमद बहुत नजदीक है। हमें उन निशानों को देखने की जरूरत है जो उसकी आमद के साथ तल्लुक रखते हैं, क्योंकि लिखा है खुदा उनके बुजुर्ग और औलाद दिन के आने से पेशतर मैं तुम्हारे पास एलिया नबी को भेजूंगा। आपके और मेरे खुदा ने इस प्रोफेसी को, इस कलाम को, इस नबूवत को, इस पेशन गोई को आपके और मेरे जमाना में पूरा कर दिया। जिस जमाना के अंदर हम रह रहे हैं, ये नबूवत जो है, ये वादा जो है, जिसके साथ खुदा ने पुराने अहदनामा को बंद किया, जिसके बारे में आपके और मेरे खुदा यीशु मसीह ने भी कहा, जब शिगिर्दों ने उससे पूछा कि अगर तू मसीह है तो मसीह के आने से पहले एलिया का आना जरूरी है, तो आपके और मेरे खुदा यीशु मसीह ने कहा एलिया अलबत्ता आएगा, एलिया अलबत्ता आएगा, सब कुछ बहाल करेगा। आपके और मेरे खुदा यीशु मसीह ने आपके और मेरे जमाना के नबी के बारे में, आपके और मेरे जमाना के एलिया के बारे में बात की, और उसके बाद आपके और मेरे खुदा ने कहा एलिया तो आ चुका, हम लोगों ने जैसा चाहा उसके साथ किया। आपका और मेरा खुदा यीशु मसीह आज से 2000 साल पहले आया, उसकी आमद के साथ एक एलिया का होना जरूरी था। एक एलिया का होना जरूरी था। लूका पहला बाब उसकी 16 आयत के मुताबिक वो एलिया जो था वो यूहन्ना था, और यूहन्ना आया और उस जमाना के लोगों ने क्या किया, उसके सर को अलग कर दिया उसके बदन से। और आज आपके और मेरे जमाना के अंदर अब फिर आपका और मेरा खुदा यीशु मसीह आने वाला है। वो दुल्हन को लेने के लिए आ रहा है, क्योंकि नबी ने कहा है अब उसकी आमद बहुत नजदीक है, उसकी आमद बहुत नजदीक है। और अगर वो आने वाला है तो उसकी इस आमद से पहले भी एलिया का आना जरूरी था, हमें बहाल करना जरूरी था। हम जो तंजीमों में फंसे हुए थे, हम जो मिशनों में फंसे हुए थे, हमारे पास जो है वो अकीदों ने, वो रस्मों ने, वो रवायतों ने, वो फैशन ने, वो और तमाम चीजों ने जो बांध दिए हुए थे, कोई ऐसे एलिया का आना जरूरी था जो क्या करता, हमारे इन परों को खोलता ताकि हम उन्होंने बहुत सारे कलाम को काट दिया हुआ था। इन तंजीमों ने कलाम के बहुत सारे हिस्सों को काट दिया हुआ था, अपनी मर्जी के मुताबिक करते करते ये कलाम जो आपका और मेरा लिबास है, उन्होंने इस लिबास को बहुत ही शार्ट कर दिया। कलीसिया जो है वो बरहनगी की हालत में आ चुकी हुई थी, क्योंकि इस जमाना के बारे में लिखा है कि तू नंगा है। क्योंकि कैसे नंगा है? क्योंकि कलाम आपके और मेरे लिए लिबास है। कोई आया, उन्होंने क्या किया, यीशु मसीह के नाम के बपतिस्मा को काट दिया। फिर कोई आया तो उन्होंने, यहाँ पर लिखा है कि औरतें जो है वो क्या करें, वो कलीसिया के मजमा में कलाम ना करें, बल्कि वहां पर खामोश रहे, वो मत को ना सिखाए। उन्होंने इस बात को काट दिया। और फिर आया, उसने क्या किया, उसने शायरबानी को काट कर उसने सुबारबानी शुरू कर दी। करते करते ये कलाम को काटते काटते गए, और ये कलाम जो लिबास है वो शार्ट होता गया। इसीलिए इस जमाना के बारे में कहा गया कि तू क्या है, नंगा है। ये पहचान नहीं रहे, अपने जमाना को जान नहीं रहे, और इसे पहचानना है तो फिर हमारे पास आंखें होनी चाहिए। और आंख क्या है? वो नबी है। खुदा की आंख कौन है? वो नबी है। वो 7 आंखें जो है, जो उस पत्थर पर कंधा है। कौन सा पत्थर?
कोने के सिरे का पत्थर आप और मेरा खुदावंद यीशु मसीह है, उसके ऊपर 7 आंखें हैं। अब उसकी इस आमद के साथ इन 7 आंखों का होना जरूरी है। और ये 7 आंखें जो क्या है, ये 7 रूहें हैं। और ये 7 रूहों के बारे में लिखा है कि क्या करती हैं, रूहों का काम क्या है, खिदमत करना। इब्रानियों पहला उसकी आखिरी आयत में क्या लिखा है, पहले बाप के आखिरी आयत में खिदमत क्या है, ये रूहें जो है, रूहें खिदमतगार रूहें हैं। किसकी खिदमत कर रही है, ये खुदा के बदन की खिदमत कर रही है। और खुदा का बदन क्या है, ये आप है। ये जो है आंखें रूहें हैं, रूहें क्या है, ये आपकी खिदमत कर रही है, ये आपकी हालेलुया। अपने वक्त को जानने की जरूरत है, पहचानने की जरूरत है, हम किस वक्त में रह रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। ब्रदर ब्रानम ने इस पैगाम के अंदर खुदा का शनाख्तशुदा शाहकार, उसने कहा, मैं सोचता हूं जब हम इस तरह की रफाकत में इकट्ठे जमा होते हैं तो ये हमारे अंदर कुछ करती है। रफाकत जो है ये बहुत जरूरी है। रफाकत जो है ये आपकी दुरुस्तगी करती है। और ब्रदर ब्रानम कहते हैं रफाकत जो है ये ऐसे ही है जैसे मसा किया तेल, जैसे मसा किया हुआ रफाकत क्या है, मसा किया तेल है, जिससे क्या किया जाता था, लोगों को मसा किया जाता था उस तेल के साथ। और आज मसा किससे होते हैं, रूहुल कुद्दस। आप रफाकत में होते हैं तो आप रूहुल कुद्दस को पाते हैं। और आज के जमाना का रूहुल कुद्दस क्या है, हालेलुया। इस जमाने का जो पैगाम है ये आपके और मेरे लिए रूहुल कुद्दस है। ये पैगाम जो है ये आपके और मेरे लिए रूहुल कुद्दस है। हमें इस पैगाम को लेने की जरूरत है, इस पैगाम को लेने की जरूरत है, ताकि ये पैगाम जो है हमें बहाल करे, हम रहे हुए मालूम ना हो, बल्कि हवा में उड़कर अपने खुदा का इस्तकबाल करें। हालेलुया। ये हमें एक दूसरे के करीब ले आती है। रफाकत क्या करती है, दूरियों को खत्म करती है। दूरी कौन लेकर आता है, आप जानते हैं कि सबसे पहली रफाकत किसने तोड़ी, आदम के अंदर। आदम और हवा जो थे वो खुदा के साथ रहते थे, लेकिन वो रफाकत तोड़ने वाला कौन था, वो इब्लीस था।